Hello students, very good afternoon to all of you. Myself, Mr. Devesh Singh. Today, I would like to teach you the new chapter, that is interjection. Students, in the last video, you have read conjunctions with all its parts, with all its detail, with coordinating conjunction and subordinating conjunction, with correlative conjunction. Everything I have explained you in the last video with examples. I hope that is clear to all of you. And here I would like to teach you the next chapter, interjection. Okay students, now let's see, this is the last part of speech. So at first you have to know what is interjection. What is interjection? So let's see. An interjection is a word. An interjection is a word or a group of words. An interjection is a word or a group of words that expresses means व्यक्त करना, expresses some sudden feeling, अचानक आने वाली भावनाओं को, और emotions, all of sudden अचानक आने वाली feelings को, भावनाओं को, of the speaker means speaker की, वक्ता की अचानक आने वाली फीलिंग्स को, भावनाओं को व्यक्त करती है. जो व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, इंटरजेक्शन. वंस अगेन यू सी, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द स्पीकर. दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. ओके, नाउ यू सी, in interjection you will get a symbol that is ऐसा सिंबल आपको मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का एक सिंबल आपको मिलेगा इंटरजेक्शन. ओके, यू सी द वर्ड्स आ. अब देखिए जो वर्ड्स आपके आ, इस आ के जस्ट बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, हेलो exclamation mark, hush exclamation mark, hurrah exclamation mark, oh exclamation mark, alas exclamation mark. So these the words like that are hello, hush, hurrah, oh, alas. These words express sudden feelings or emotion. ये वही words हैं जो sudden feelings और sudden emotions को show करते हैं. They have no grammatical relation with any of other words of the sentences, or they have no any grammatical relation with any of the other words of the sentence. Such words are called ऐसे शब्द ही इंटरजेक्शन. आई होप कि आपको इंटरजेक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया. Very easy, in easy words it has been explained here. I hope this is clear to all of you. What is interjection and how you will define it in your own words. To see this board in a very easy way you can explain it. Now here are some clues I have. Some clues I have mentioned here on this board. You can see that is very important to judge you that which words, which emotions is expressing here by the speaker to use such type of word. Now let's see. At first, hurrah. अगर कहीं पे कोई स्पीकर होता है hurrah, अगर कोई स्पीकर यूज करता है, इसको हम टुर्रे भी बोलते हैं. टुर्रे
और कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन हुर्रे भी होता है। तो उर्रे, इसको उर्रे भी बोलते हैं और इसको हुर्रे भी बोलते हैं। तो उर्रे, हा, उर्रे, हा। तो दीज आर द सिंबल ऑफ जॉय। अगर यहाँ पे इस तरह की अगर कोई वर्ड्स यूज हो रहा है स्पीकर के द्वारा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वहाँ पे जो इमोशंस है वैसा है जॉय का, यानी प्रसन्नता का। जो वहाँ पे इमोशन है स्पीकर की जो फीलिंग है, इट मीन्स द स्पीकर इज ट्राइंग टू शो हिज joy, his present mood, his happiness. So he is using such type of word like that, like that, haha. Okay. Now you see the next. Ha. सिर्फ हा का बोलोगे, हा मतलब when you are looking surprised, किसी अचानक किसी मैटर पे किसी बात पर सरप्राइज फील कर रहे हैं तो उसका बोलेंगे हा। ओके, व्हाट, और कोई अचानक किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी सरप्राइजिंगली किसी मोमेंट के बारे में सुन कर व्हाट, तो व्हाट और फिर ओ। तो ये जो वर्ड्स है स्टूडेंट्स, दीज आर द इमोशंस ऑफ द स्पीकर एंड दीज वर्ड्स शोज द सेंस ऑफ सरप्राइज। क्या? सरप्राइज। इस सरप्राइज को शो करता है। इस वर्ड्स को आप अच्छे से याद करेंगे। दीज आर द वर्ड्स दैट शोज द इमोशन ऑफ सरप्राइज ऑफ द स्पीकर। ओके, नाउ व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। ऑल ऑफ सडन व्हेन द स्पीकर यूज दिस फ्रेज व्हाट अ शेम, जब इस तरह की फ्रेज को यूज किया जाए व्हाट अ शेम, इट मीन्स द स्पीकर इज ट्राइंग टू मेक अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट यू। आपके अगेंस्ट कोई कंटेम्प्ट यूज किया जा रहा है, आप पर कोई कंटेम्प्ट किया जा रहा है। मीन्स द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विद यू, यू आर लुकिंग देयर इन ट्रबल, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंसल्ट देयर बाय यूजिंग योर words, your expressions, means you are not accepted there. It means okay. So it means there is contempt. Now let's see the next. Listen, behold, look, hello. जब इस तरह के वर्ड्स अगर यूज हो तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में होता है ड्रॉनिंग अटेंशन। ड्रॉनिंग अटेंशन यानी किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का, किसी को अपनी तरफ, किसी का ध्यान अगर कोई जा रहा है तब क्या बोलेंगे उसको, कैसे बोलेंगे? इफ यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू हैव टू शो योर पोलाइटनेस, तो देन यू विल यूज हेलो। तो हेलो बोल करके आप उसका अटेंशन को ड्रा करने का काम कर रहे हैं। इट मीन्स हेलो क्या हो गया? ड्रॉइंग अटेंशन। लुक के लिए, और किसी को आपको दिखा रहे हैं लुक द स्टार, लुक द सन, लुक द मून, लुक द बॉय, मीन्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉय, गर्ल, चिल्ड्रेन, एनीवन। ओके, now brow, well done, brow and well done। अगर आपकी टीम में कोई अब मैच खेलने कहीं जाते हैं और आपकी टीम में कोई भी प्लेयर है, उस प्लेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उस प्लेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वेल डन, ठीक है। और या किसने बहुत अच्छी अगर कोई शॉट मारा है, कोई अच्छा आपको मैच जिता करके दिया है, तो आप बोलेंगे ब्रावो, यानी शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा किया। तो ये जो वर्ड्स है ब्रावो, वेल डन, इट मीन्स ये क्या है? ये एप्रिसिएशन है, आप किसी को एप्रिसिएट करने का काम कर रहे हैं। सो टू एप्रिसिएट समवन ब्रावो एंड वेल डन, लाइक दैट वर्ड इज यूज्ड। ओके, नाउ alas, alas, शब्द कहाँ पे आता है? जब दुख की बात हो, कोई आपको पेन हो रहा है, आप गिर गए, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे। फिर ओ, तो ओ
oh, ah, alas. So these are the words that shows the sorrowful emotion of the speaker. So these words show sorrow. ये सब सॉरो को एक्सप्रेस करते हैं, स्पीकर के दुख को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये सारे वर्ड्स जो हैं सॉरो के सिंबल हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, और आपको हम बता दें, हाँ, अगर साइलेंट करना है इसको, हस, 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 तो हस जो है ये बिकम साइलेंट, शांत बने रहने का एक सिंबल है। इसमें यू हैव टू बिकम साइलेंट, यू हैव टू बिकम साइलेंट एट एनी पर्टिकुलर इवेंट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेक एनी साउंड, सो यू आर जस्ट गोइंग टू बिकम साइलेंट एंड एट दैट टाइम स्पीकर कैन यूज हिज इमोशन सेइंग दैट हस, 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 हस मतलब यहाँ पे बिकम साइलेंट। Okay, so these are the words that is used by the speaker to make someone draw attention or to show expression of sorrow, expression of joy, expression of surprise, like that, many things. Okay, students, I hope this is easy, very easily clear to you. Now you can see the words that is used in a interjection parts. You see like that, I damaged the vase. जैसे कोई बच्चे ने अगर वेस्ट में जो गुलदस्ता होता है और गुलदस्ते को गिरा दिया तो उसको कैसे बोलेंगे, आई डैमेज द वेस्ट। वहाँ पे क्या करेगा, उसको वहाँ पे सॉरो शो करेगा, आई डैमेज द वेस्ट, मैंने गुलदस्ते को डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया। मीन्स ही इज एक्सप्रेसिंग हिज सॉरोफुल इमोशन एट दैट टाइम व्हेन ही डैमेज द फ्लावर वेस। ओके, और फिर किसी को अटेंशन ड्रा करने के लिए कोई सेंटेंस हो गया, हेलो व्हाट इज द मैटर। कोई अगर व्यक्ति आपका है सामने बैठा हुआ, वो परेशान है, चिंतित है, आप उससे अगर बात करना चाहते हैं, उसके किसी मैटर्स में आप शेयर करना चाहते हैं तो पूछेंगे हेलो व्हाट इज द मैटर। ठीक है ना, हेलो व्हाट इज द मैटर मीन्स टू यूज सच टाइप ऑफ इमोशंस, सच टाइप ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट्स, यू आर जस्ट गोइंग टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग और सिटिंग बिफोर यू। ओके, नाउ हस, बी क्वाइट, हस, बी क्वाइट मीन्स आप किसी को क्या करें, शांत रहने के लिए, हस, बी क्वाइट। स्टूडेंट्स को, अपने कंपेनियंस को, किसी भी मीटिंग में किसी अपने मीटिंग के अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने जो आपके वहाँ पर कॉमरेड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। द स्पीकर कैन यूज देयर हस, बी क्वाइट। तो स्लो मूवमेंट में बोलने वाले सब वर्ड्स हैं, हस, बी क्वाइट। दीज आर द वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन अ वेरी स्लो मूवमेंट। ओके, नाउ हुर्रा, हुर्रा, वी वॉन द टूर्नामेंट, वन द टूर्नामेंट। मैच जितने प्लेयर्स गए, मैच जीत गए, तो मैच जितने खुशी बोलते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच। काफ़ी वो वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ जॉय वहाँ पर बाय द स्पीकर, देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने तो मैच को जीत लिया। इस टाइप का इमोशंस, इस टाइप की फीलिंग वहाँ पे शो किया जाता है बाय द स्पीकर टू शो द जॉय, टू शो द हैप्पीनेस एट दैट मोमेंट। ओके, नाउ अलास, alas, there is little hope of her winning, there is little hope of her winning। अगर इंडिया से मैच हो रहा है और कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, मैच जीतने की कंडीशन नहीं है, तो काफ़ी कंडीशन मतलब प्रियोरिटी जो है वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, तो वहाँ पे इस टाइप का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अलाश, देयर इज लिटिल होप ऑफ आवर टीम्स विनिंग। ओके, या फिर अलाश, आई एम रून्ड, मैं बर्बाद हो गया। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं यूज करके यू कैन शो और एनी स्पीकर कैन शो
his or her expression and it is used for the sorrowful moment. Okay, students. So, students, this is the explanation for your chapter interjection. और आई होप कि मैंने जितना आपको बता दिया इंटरजेक्शन को समझने के लिए काफ़ी एनफ है. यू कैन जज एनी सेंटेंसेस दैट व्हाट इज द स्पीकर वांट्स टू से देयर. ओके, नाउ थैंक्स so much to see the video. Have a nice day. Goodbye.